Hello everyone, welcome to Chokta Academy. My name is Bhanu Guleria and we are doing the most important current affair through MCQ. This is the part 13 of the video. So let's start the video. The first question is, consider the following statement. The Fiscal Responsibility and Budget Management Review Committee reports has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general government by 2023, comprising 40% of central government and 20% of state government. The central government has domestic liability of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of state government. As per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government consent for raising any loan if the former owes any outstanding liability for the latter. Which of the statement is are correct? Option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3, option D 1, 2 and 3. अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ अपोजिट दिया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज है दैट इज 49% एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात करें दैट इज 21%. सो सी इज द राइट आंसर. एक्सप्लेनेशन में देखते हैं. FRBM रिव्यू पैनल हैज रिकमेंडेड द क्राइटेरिया ऑफ डेप्थ एज ए पैरामीटर फॉर fiscal responsibility by central share being 40% and state 20%. Also in term of domestic liability, the figures are actually reversed, that is central government is 49% and state government is 21%. Okay, next question है, consider the following statement regarding Controller and Auditor General of India. न्यूज़ में ये इनकी कैग थे इसलिए क्वेश्चन बना है. इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द कैग इज रैंक्ड 9th and enjoy the same status as a sitting judge of Supreme Court of India in order of precedence. The CAG is empowered to audit all receipt and expenditure of Government of India and the state government, including those of autonomous bodies, corporation, substantial finance by government. Which of the statement is are correct? Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 3, option D 1, 2 and 3. So all the statements are correct. D is the right answer. आर्टिकल हमें याद रखना है, आर्टिकल 148 और रैंक याद रखना है. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 9th रैंक है और ये एम्पावर है ऑडिट करने के लिए रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ India. D is the right answer. Third question है, the Intergovernmental Negotiating Committee was convened and managed by option A UNEP, option B IUCN, option D World Bank, option T WTO. तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की ये कमेटी है INC1. A is the right answer. INC1 was convened and managed by United Nation Environmental Program. The INC1 came after a landmark resolution was endorsed at United Nations Environment Assembly calling for the international legally binding instrument to promote sustainable production and consumption of plastics. Okay. Fourth question, Bureau of Indian Standards is the national standard body supported by option A Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, option B Ministry of Commerce and Industry, option C Ministry of Health and Family Welfare, option D Ministry of Home Affairs. तो Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution की जो BIS है ये सपोर्ट किया जाता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. एक्ट है, कौन सा एक्ट है? इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर BIC एक्ट 2016. इसलिए ये क्या है? एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी है. फिफ्थ क्वेश्चन, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी नागालैंड. तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है हम सब जानते हैं
नागालैंड से रिलेटेड है। डी इज द राइट आंसर। It is celebrated to encourage inter-tribal interaction or to promote the cultural heritage of Nagaland. The government of Nagaland organizes the Hornbill Festival every year in the first week of December. दिसंबर में हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है और इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन को प्रमोट करने के लिए और उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस is in the UNESCO intangible heritage list? Okay, option A कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी भारतनाट्यम, ऑप्शन सी चाहू, ऑप्शन डी ओडिसी। ओके, तो जो चाहू डांस है वो यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। 2010 में 2010 में ये जो डांस था ये शामिल करा गया था और मेनली ये जो डांस है झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड स्टेट से रिलेटेड है, लेकिन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसकी जो सेलिब्रेशन है वो की जाती है। तो सी इज द राइट आंसर। अ टोटल नंबर ऑफ 14 intangible heritage cultural heritage elements from India have been inscribed till the date on the UNESCO representation list of intangible cultural heritage of humanity। लगभग 14 इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है और उसमें 2010 में ये जो चाहू डांस है जो मेनली झारखंड स्टेट से रिलेटेड है वो एड ऑन करा गया है। डिग यात्रा इज एन इनिशिएटिव ऑफ ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन के द्वारा ये डिगी यात्रा इनिशिएटिव शुरू करा गया है। डी इज द राइट आंसर। सीमलेस पैसेंजर मूवमेंट के लिए ये डिगी यात्रा इनिशिएटिव है। इज ए प्रोजेक्ट कंसीव टू अचीव कॉन्टैक्टलेस सीमलेस प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर एट द एयरपोर्ट बेस्ड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। FRT जो टेक्नोलॉजी है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा डिगी यात्रा इनिशिएटिव के थ्रू लॉन्च करी गई है और ये जो पैसेंजर टाइम है उसको कम करने के लिए कॉन्टैक्टलेस और सीमलेस प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। 8th मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर अ बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी जापान। तो सिंगापुर के साथ ये एक्सरसाइज है अग्नि वॉरियर। जो हमारी हर वीडियो है उसमें एक मिलिट्री एक्सरसाइज रहती है क्योंकि हम लेटेस्ट ट्रेंड में देखें तो मिलिट्री एक्सरसाइज से बहुत पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन बनने की हमारी पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर हम करंट अफेयर की अप्रोच की बात करें, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर के लिए कौन सी मैगजीन बेस्ट रहेगी या किस तरह से अप्रोच रहनी चाहिए। तो आप कोई भी अगर मैगजीन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक मैगजीन पे फोकस करें। अब इससे क्या बेनिफिट रहेगा, देखिए करंट अफेयर बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, एंडलेस ये जर्नी है। अगर आप करंट अफेयर को रिटेन करना चाहेंगे तो इसमें हमारी अगर एक मैगजीन को पे हम फोकस करेंगे तो लास्ट टाइम पे जब हमारा प्रीलिम्स होगा तो इसको रिवाइज करना बहुत आसान होगा। और अगर रिवाइज करके आप जाएंगे साथ में इस तरह के डेली आप MCQ लगाते रहेंगे, और MCQ लगाने का भी एक पर्पज़ ये है कि बहुत स्पेसिफिक साइट से या स्पेसिफिक वीडियो से ही आप MCQ करें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी आपको वीडियो से MCQ करें और बाद में उनको रिवाइज नहीं कर पाए, तो वो आपकी जो करंट अफेयर है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में। तो मेरी जो सजेशन है वो कोई भी एक मैगजीन आप रिवाइज करें, उसी को पढ़ें और उसके बियॉन्ड किसी दूसरी मैगजीन पे आप फोकस ना करें। और करंट अफेयर अगर हमारी वीडियो से देख रहे हैं या किसी एक वीडियो से देख रहे हैं उसी से ही देखें ताकि आप लास्ट टाइम में उसे रिवाइज भी कर पाएँ। उसके बाद जो टाइम बचता है वो आप अपने जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आपकी जो प्रीलिम्स हैं उसमें जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें से भी आप जो मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। ओके, तो सिंगापुर हमारा इसका आंसर रहेगा। 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर आर्मी वाज रिसेंटली कंक्लूडेड। ओके, अग्नि वॉरियर किस के बीच में एक्सरसाइज है, सिंगापुर और इंडियन आर्मी।
नाइन्थ क्वेश्चन है, सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी वॉक फ्री फाउंडेशन, ऑप्शन सी ग्रीन वॉच, ऑप्शन डी प्यू रिसर्च सेंटर। ओके, डी इसका जो आंसर है, इनके द्वारा लॉन्च करा गया है सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स। ये मेनली किस पे फोकस है, इंडिविजुअल की रिलीजियस हॉस्टिलिटी कितनी इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी में, उस पे फोकस है। डी इज द राइट आंसर। इंडिया टॉप्स द इंडेक्स ऑफ सोशल हॉस्टिलिटी रिलेटिंग टू द रिलीजन। इंडिया ने इसमें टॉप करा है, जो एक नेगेटिव वे में हम देख सकते हैं। ओके, सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स मेजर एक्ट ऑफ religious hostility by private individual, organization or groups. The index comprises 13 metrics including religious related, armed conflict, terrorism and mob sectarianism, violence. Okay, 10th question, consider the following statement. Asiatic cheetah is classified as a critically endangered species by IUCN Red List. African cheetah are bigger in size as compared to Asiatic cheetah. Which of the statement given above is are correct? Both statement are correct. Critically endangered है एशियाटिक चीता, अफ्रीकन चीता की बात करें वो बिगर इन साइज है। अगर इनके स्टेटस की बात करें, अफ्रीकन चीता हमने ऊपर देखा कि वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट में, और एशियाटिक चीता क्या है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये IUCN रेड लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर इंडिया में स्टेटस की बात करें तो इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर करा गया है 1952 में। 11th क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस ऑफ विच एजेंसी? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी ESA, ऑप्शन डी जाक्सा। तो नासा के द्वारा ये इनिशिएटिव है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ये नॉर्थ अमेरिका के जो रीजन है उसमें पॉल्यूशन को मॉनिटर करेगा। बी इज द राइट आंसर। दैट विल ट्रैक पॉल्यूशन ओवर नॉर्थ अमेरिका। इट विल अनेबल साइंटिस्ट टू मॉनिटर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज फ्रॉम स्पेस। द स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन टू मेजर एयर पॉल्यूशन अक्रॉस ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका एट हाई रेजोल्यूशन एंड on an hourly basis. 12th question है, sport for poor prisoner scheme is associated with which union ministry? Option A Ministry of Home Affairs, option B Ministry of Defense, option C Ministry of External Affairs, option D Ministry of Finance. तो Ministry of Home Affairs की जो स्कीम है sport for poor prisoner scheme, A is the right answer. Sport for poor prisoner scheme is said to be launched by Union Ministry of Home Affairs. Under the scheme, state government will receive financial support from the Home Ministry to help underprivileged prisoners who are unable to get bail or secure release from prison due to financial constraints. तो poor prisoner है, उनके support में ये Ministry of Home Affairs के द्वारा जो स्कीम है वो लाई गई है। Question 13, Rihanna Barnaby is said to become the first woman astronaut from which country? Option A UAE, option B Saudi Arabia, option C Israel, option D पाकिस्तान। तो सऊदी अरेबिया की ये वुमेन है, तो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट बनी है हमारी सऊदी अरेबिया से। ओके, रियाना बारनबी। ओके, इसके साथ एक और अगर हम बात करें, अली अल करानी विल टेक ऑफ फ्रॉम फ्लोरिडा ऑन ए प्राइवेट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये दोनों सऊदी अरेबिया की जो एस्ट्रोनॉट हैं। क्वेश्चन 14, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस इज एसोसिएटेड विद विच एसोसिएशन? ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी G20, ऑप्शन सी EU, ऑप्शन डी ESA। ऑप्शन सी EU इज द राइट आंसर। Copernicus is Earth observation component of European Union space program. Copernicus Climate Change Service is one of the 6 thematic services provided by Copernicus program. According to C3S March 2023, witness variation on several meteorological fronts. Okay, यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। 15 क्वेश्चन, एक्साइज गरुड़ शक्ति is bilateral exercise held between
इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इंडोनेशिया के साथ ये गरुड़ शक्ति है। और अगर हम बात करें और मिलिट्री एक्सरसाइज की, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज, अग्नि वॉरियर हमने देखा सिंगापुर के साथ है। और युद्ध अभ्यास की बात करें हम, इंडिया यूएस आर्मी के साथ है। और एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। हरिमाऊ की बात करें मलेशिया के साथ है। और गरुड़ शक्ति की बात करें इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज है। अपॉइंटमेंट से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह who were in the news recently are associated with which sport? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी स्क्वैश, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो मनु भाकर और सरबजीत सिंह शूटिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह won the 10-meter air pistol mixed team title at 65 national shooting championship competition. 17th question, how many Indian features in Forbes Asia Heroes of Philanthropy list? Option A none, option B 2, option 3 C 3, option D 5। तो 3 जो इंडियंस हैं वो फोर्ब्स एशिया हीरो ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी लिस्ट में शामिल करे गए हैं। अब इनके नाम क्या क्या हैं? गौतम अडानी, शिव नडार और अशोक शूता, ये 3 पर्सनैलिटी हैं जिनको ऐड करा गया है फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी लिस्ट में। 18th क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी मैसूरू। तो वाराणसी में ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जो कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड हुई है, ऑर्गेनाइज्ड इन वाराणसी बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंदाविया लॉन्च्ड द ऑपरेशन गाइडलाइन फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ओके। 19th क्वेश्चन है, एनटीपीसी कमीशन 150 मेगावाट एंड 90 मेगावाट देवीकोट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। राजस्थान में 150 मेगावाट और 19 मेगावाट का देवीकोट सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है। बी इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज पास्ड द लॉ बैनिंग द सिगरेट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी चाइना। तो न्यूजीलैंड के द्वारा ये बैन करा गया है सिगरेट्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस। न्यूजीलैंड पास्ड a law banning cigarette for future generation in the country. It is considering an attempt to bring tobacco ban from next year. According to the law passed by the parliament, anyone born after 2008 will never be able to buy cigarette or tobacco products in the country. 2008 के बाद जो बॉर्न है उनको कभी भी सिगरेट्स और टोबैको जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल नहीं किए जाएंगे। द लेजिस्लेशन विल आल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ निकोटीन allowed in smoked tobacco products and cut the number of retailers to sell tobacco by 90%। जो अभी भी मौजूदा टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं उसमें निकोटीन का कंटेंट कम किया जाएगा और 2008 के बाद जो बॉर्न है उनको completely बैन है टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। ओके, तो न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।